मैं ਤੁਹਾਨੂੰ minorities the constitutional or political philosophy च लेके नहीं जाना चाहूँगा because it is very obvious field or everybody knows what are the ingredients the concept of minority carries or what are the constitutional provisions in the Constitution of India. However, if we see the Section 2C of the National Commission of Minorities Act of October 23rd, 1993, it notified five groups of Muslims, Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, and later on they incorporated Jains also. And in the constitutional structure of India, minorities play very important role in nation building because our society is not a monolithic society. It is plural, multi-layered, multi-pulse society which are having various contours of manifestation. But all these contours have been integrated by our constitutional provisions. When I see the existence of minorities in our nation, I take the cue from Ambedkar. Dr. Ambedkar, who is the father of our Constitution of India, his understanding of concept of nation building is that the development of all, particularly of the oppressed section in society, is needed for India to become a true nation, and Ambedkar's conception of nation building implied pursuits of policies which must be inclusive. So he stresses upon the inclusiveness. We cannot exclude people or the minority from the mainstream. Other thinker is not Indian but Jew thinker. He is a Talmudic scholar, Martin Buber. He wrote a book, I and Thou. In his concept of seeing others, for him, other is very important. And in majority nation, where this dichotomy, this binary is there, minority and majority, he says the existence of other is very important. Very famous line of him is there in his book I and Thou. He says, through the thou, a person becomes I. Through the thou, a person become I. So other is very important to understanding of other, to accepting the existence of other, and knowing the reality of other is the main crux to understand why minorities are important to us in nation building. So, as I already said, our nation is believes in pluralism because it is a pluralistic society. There is no one religion.
The Western concept of Western theory of the nation is there should be one geography, one language, one religion, and one government. But here in constitutional provisions of India, here many many religions are there, many languages are there, many scripts are there, many cultures are there, many uh, lot of manifestation of diversity is there. So I remember a couplet from Urdu. He says कि चमन में इख्तिलाफ रंग से बात बनती है, हम हैं तो क्या है, तुम ही तुम हो तो क्या है. So Indian society is a plural society. It's a society of coexistence, and it is a society of brotherhood. These are the three ingredients to understand the concept of minority. नमस्कार, जय हिंद, नमो बुद्धे, जय जिनेंद्र, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। क्योंकि मैं सारे धर्मां दा ही नुमाइंदा है, इस करके सारे धर्मां वालों ही तुहानूं वैलकम करना है। अज दा ये सैमीनार क्यों किया गया और चंडीगढ़ चों ही क्यों किया है, ये बारे मैं तुहाडे नाल थोड़ी सांझ पानी चाहांगा। इस स्टेज ते विराजमान मेरे गुरु समान, बुजुर्ग पिता समान श्री गुरबचन जगत जी, फॉर्मर गवर्नर मणिपुर, उन्हां दे बारे बहुत कुछ कहा गया जिहड़ा लोकां दे कागजां दे विच है, लेकिन एक इंसान के रूप में एक आम व्यक्ति नूं एक अच्छा इंसान किवें बनाउणा है, इन्हां तो वध कोई नहीं जानता। इन्हां तो ईमानदारी एज ए पुलिस अफसर इन्हां तो अगे खत्म सी। कोई व्यक्ति सारे कैरीयर च इन्हां दे उत्ते एक उंगली नहीं चुक सकता कि इन्हां बारे सोच भी नहीं सकता कि इन्हां ने किसी ऑनेस्ट आदमी नूं सपोर्ट भी किया होएगा। उस तो बाद एक ऐसा पुलिस अफसर जिन्हें बिना डंडे तो ही अमन कानून बहाल रखा और सारी सिचुएशनस नूं हैंडल करना इन्हां तो अच्छे ढंग नाल कोई नहीं जानता। भावें पिंडरां वाले नूं मिलना होवे, भावें उन्हां नूं इस गल लई राजी करना होवे कि मैं अपना मैमोरेंडम कोतवाली आके दे दियांगा। जगत साहब तो एक इतिहास का हिस्सा ने जिन्हां तो सब नूं समां कढ के इन्हां तो सीखना चाहिए। सरदार मनमोहन सिंह जी बड़े विद्वान आदमी हैं। जैन साहब ने अपनी गलबात राही ही स्पष्ट कर दिता है कितने चैन करते हैं। डॉक्टर सेठी, सब असल कारण ये सी कि जो मैं माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनया तो माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक का होंदा है। तो जिस दिन मैं ज्वाइन किया मैनू ये दसिया गया कि ये मौजा करन दी थां है। नाउ यू कैन इंजॉय ऑल दी पर्क्स ऑफ द गवर्नमेंट एज ए मिनिस्टर, पर काम करन दी कोई लोड़ नहीं। मैं सोचा यार मैं तो सारी उम्र जगत साहब का चेला रहा, तो काम किए बिना रोटी किवें खाधी जाएगी, ये तो सारा हजम नहीं होएगा, काम तो करना पएगा। सो असी माइनॉरिटी कमीशन है कि माइनॉरिटी कमीशन किस काम आ सकता है, केवल इनू परक्स नू इंजॉय किया जा सकता है या समाज की सेवा भी की जा सकती है। सो वो मैं जो वेख्या तो ये बहुत कुछ करने वाला है। पिछे झाती मारिया सी किन्ना खोया, बहुत जोड़े साडे पुराने बजुर्ग है जोड़े साडे तो पहला रहे उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और बहुत कुछ उन्होंने लिखा साडे को रिकॉर्ड भी है कि किवें चंडीगढ़ दे विच बह के खालिस्तान का मता पास करवाया गया। गंगा सिंह नाम का एक उसी ट्रैवल एजेंट बाद जो गंगा सिंह ढिल्लों बन गया, उन्होंने किवें अमरीका तो लिया गया, तो सारा दिस पार्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो किवें जदों सरदार सुजान सिंह आके मिलते हैं सन जरनैल सिंह नूं
ਤੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਿਉਂ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਸਰ GVS ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ, ਦੈਟ ਐਕਸਪਲੇਨਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ। ਜਗਤ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਧਰਮ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਨਰਲ KJ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਜਿਹੜਾ ਗੇਅਰ ਹੈਗਾ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰਸ ਨੂੰ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਈਦ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲੜਿਆ ਕੌਣ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਓ। ਸੋ 8 ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, 7 ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਸ਼ਾਟ ਵੂੰਡ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋਕਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੂੰਹ ਗਏ ਆ, ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਨ ਝਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਬਚਾਏ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ 84 ਕੋਸੀ ਯਾਤਰਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਮਥੁਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਅੱਜ 2 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸਾਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ, ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਲੈਕਚਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਐਸਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਢਿੱਲੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਫਾਰਮਰ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਾਹਲੋਂ, ਸਿਮਰਤ ਕਾਹਲੋਂ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਛੀਆਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਕੜੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਆਂਕੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 50% ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਇਜ਼ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਐਂਡ ਲੈਸ ਦੈਨ 50% ਇਜ਼ ਮਿਨੋਰਟੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਨੋਰਟੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 16% ਸੀ ਔਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 84% ਸੀ। ਇਹ 1951 ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ 2011 ਦੀ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਸ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਘਟ ਕੇ 79% ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਮਿਨੋਰਟੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਕੇ 21% ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਾਥ ਮੰਡਲ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 21% ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ 51 ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 4% ਹੈ। ਵੇਅਰ ਆਰ ਦੀ ਅਦਰ 18%। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਉੱਥੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 24% ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਘਟ ਕੇ 9% ਰਹਿ ਗਈ, 8.9% ਹੈ ਪ੍ਰਸਾਈਜ਼ਲੀ। ਬਾਕੀ 15% ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਦਿਨੇਸ਼ ਕਨੇਰੀਆ, ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਲੇਅਰ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਲੈ। ਯੂਨਸ ਹੰਨਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਬਣਨ ਲਈ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਬਣਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। मैं हिंदुस्तान के माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन सरदार प्रेम सिंह लहनपुरा जी का बहुत धन्यवादी हाँ, जिन्होंने आज पंजाब यूनिवर्सिटी के उत्ते इस विषय पे यूथ एंड नेशन बिल्डिंग रोल ऑफ माइनॉरिटीज, इस मौके पे जो एकत्रता इकट्ठी की है, मैनू लेके आने का, सारी संगत के दर्शन करन दा ते अपनी गल सुनन दा, अपनी गल कहन दा ते दूजियां दी गल सुनन दा मौका दिता है। मैं जैन परिवार च पैदा होया, क्रिश्चन हाई स्कूल चों एजुकेशन लीती, गुरुद्वारे के कोल मेरा घर हैगा और पाकिस्तान जाने का मौका मिले। उर्दू जबान थोड़ी बहुत सीखने का मौका भी स्कूल के दौरान च मिले। तो मैं कई बार सोचता कि अगर मेरी आइडेंटिफिकेशन होवे तो मैं कितने माइनॉरिटी च होवांगा तो कितने मेजोरिटी च होवांगा, ये शायद उस पर डिपेंड करेगा कि किस स्थान पर किहड़े इशू पर तुसीं बोल रहे। खैर, जो भी कंसैप्ट है हिंदुस्तान जो है, मैं सिर्फ 2-3 छोटे छोटे पॉइंट कहना चाहता। साडा मुल्क, सारे हिंदुस्तान, सारा मुल्क साडा दुनिया के किसी मुल्क नाल तुसीं मुकाबला कर लो, साडे वर्गा मुल्क किते नहीं है। साडे वर्गा मुल्क किते नहीं है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने मेजोरिटी वर्ड डिफाइन नहीं किया, माइनॉरिटी का शब्द इस्तेमाल किया। और माइनॉरिटी भी आर्टिकल 28, 29, 30 रिलीजन या लैंग्वेज दोनों के बेस पर किया है कि जो भी रिलीजन के बेस पर माइनॉरिटी है ने या जुबान के है ने, उन्होंने अपने हकूक रखने का, अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कायम करने का उन्होंने हक है, साढ़े हिंदुस्तान के संविधान ने दिता है। मैनू नहीं लगता किसी होर दुनिया के मुल्क के किसी तरीके का प्रावधान संविधान के अंदर किया हो। दूजी गल, साढ़े इत्थे मेजोरिटी और माइनॉरिटी डिफर करती है सिचुएशन टू सिचुएशन, रिलीजन के भी अंदर भी डिफर करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। साढ़े कोई मजहब ले लो, क्योंकि रिलीजन का सीधा साधा मतलब, हालांकि रिलीजन का असली मतलब तो धर्म है जी ड्यूटी नाल जुड़िया है, पर जो पूजा पद्धति नाल ले लो, इस मुल्क के अंदर कोई भी समाज ये कन्वे नहीं कर सकती भी साडा सारियां दा इको धर्म है। मैं जैन परिवार पैदा होया, भगवान महावीर की सारी जी मुहिम सी वो मूर्ति पूजा के खिलाफ सी, वो वायलेंस के खिलाफ सी।
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੈਨ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗੀ, ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, सिख गुरु साहब ने क्या आज्ञा पाई काल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे, जो प्रभु को मिल बोच है खो शब्द में ले। और मैं दावे नाल कह सकता, मेरी गल दा बुरा ना मना, इवन सिखा के अंदर भी जाके अगे डिफरेंट सेक्ट्स आ गए ने, डिफरेंट ग्रुप आ गए ने, निरंकारी, राधा स्वामी, डेरा स्वामी। कोई मजहब तुसी उठा के देख लो, क्रिश्चियन ते मैं केस लड़े सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, मुसलमाना दे मैं केस लड़े, SGPC दे इलेक्शन का मैं केस लड़िया। मैं दावे नाल कह सकता है कोई भी रिलीजियस माइनॉरिटी हिंदुस्तान च ऐसी नहीं होएगी जिहदे अगे जाके फर्दर स्प्लिंटर ग्रुप नहीं होए ने, जिन्हां दी अगे जाके डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुई। इस तरीके नाल लैंग्वेज भी देख लो, पंजाबी, मैं पंजाब सारे घूमिया, साडे पंजाब के लोग बैठे ने, 3 सेंटेंस कोई पंजाबी बोले, पंजाब तो आया बंदा, मेरे वर्गा एक नवाना जा बंदा भी दस सकता भी ये गुरदासपुर तो है, या ये अमृतसर तो है, या ये पैक्सू तो है। इको भाषा हिंदी यूपी चले जाओ, बिहार चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, जो असेंट है वो दस सकता है। मैं इस करके अच्छा दूर करके ठीक है, वो वकील को जरा तेज बोलने की आदत है इस करके। तो मैं जो गल तुहानूं कहन लगा कि असीं बहुत भागा वाले हैं कि सानूं इस संविधान मिले। साडा एक डेलीगेशन पाकिस्तान गया सी जदों अटल बिहारी वाजपेयी जी बस लेके गए, तो 25 MP सन असीं, साडी उत्थों पाकिस्तान के MPs नाल आमने सामने गलबात, असीं लोग सारे बोले, सुषमा स्वराज जी सी, कपिल सिब्बल सी, शांता कुमार जी सी, बलराम जाखड़ सी। हैरानी की गल है कि असीं जिहड़े इत्थों गए सन, असीं तो उर्दू च तकरीर कर रहे सी, और जिहड़े पाकिस्तान के MP सन वो अंग्रेजी च बोल रहे सी। असीं जदों बोलना शुरू किया, मैं कहा कि मैं हिंदुस्तान से आया हूँ, हमारा मुल्क मुख्तलिफ ज़बानों का मुल्क है, मुख्तलिफ मजहबों का मुल्क है, मुख्तलिफ बसिंदे एक साथ हिंदुस्तान में रहते हैं, अलग अलग उनकी खुदा की इबादत करने की सबकी तमीज़ अलग अलग है, हमारा आयन एक है। हमारे वज़ीर आला अटल बिहारी वाजपेयी जी सब मजहबों का बराबर का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। वो ऐसे देखें, सुषमा जी उर्दू में बोली, आरिफ मोहम्मद खान हमारे साथ गए हुए थे, जो आज गवर्नर है केरला के, जब उनका नंबर आया तो उन्होंने कहा कि देखो आप हिंदुस्तान को जितनी मर्जी गालियां देते रहो, आपको कोई रोकेगा नहीं। हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जिसने माइनॉरिटीज को सारे राइट दिए हैं। आप जब हमारे को क्रिटिसाइज करते हो, पहले पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को वो सारे राइट दो, फिर आप हमको क्रिटिसाइज करना कि आपका जो मुल्क है वो कम उसके मुताबिक नहीं चलता। हम लोग हर जुबान का रिस्पेक्ट करते हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, भले ही रिलीजन अलग अलग हो सकता है, पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है, आप किसी भी मजहब में चले जाओ, आगे से आगे चल के स्प्लिंटर ग्रुप आ गए, लेकिन थॉट कंटेंट सबका एक है। कोई मजहब में कोई, हमारा चाहे सनातन धर्म है, आर्य समाज है, सिखिज्म है, कोई ये नहीं कहता कि मैं ही खुदा का बंदा। सब कहते हैं हम हूं परम पुरुष का दासा, देखन आयो जगत तमाशा। किसी ने नहीं कहा कि सिर्फ मैं ही खुदा हूं, मेरी ही पूजा करो, किसी ने नहीं कहा। सबने सबकी रिस्पेक्ट की, और सबके अंदर एक संदेश। गुरु वशिष्ठ ने कहा, सुन रे भरत भावी प्रबल, बिल्ख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। और बाबा फरीद ने कहा, फरीदा नदी किनारे बगला बैठा केल करे, केल करेंदे हंजनू चिंते बाज पे तीस रबदे कलीला विसरियां, जो मन चित न चेते सन सो गली रखी है। और गुरबाणी में कहा, पवन गुरु पानी पिता माता तर्क महत, दिवस रात दुई दाई दाया खेले सकल जगत, चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे तर मधुर, करनी आपो अपनी के नड़ी के। यही सब मजहबों का संदेश है। सबके अंदर सबमिसिवनेस, सबके अंदर ह्यूमिलिटी बराबर की है सबके अंदर। भगवान राम जब लौटे अयोध्या से, तो वो सबसे पहले कैकेयी के कक्ष में गए, मंथरा के कक्ष में गए। उन्होंने कहा कि तुम अपने मन पे बोझ मत डालो, जो कुछ हुआ वो मेरे भाग्य में लिखा था, वो सारा वो था। और बाबा फरीद ने कहा, फरीदा बुरे दा भला कर, जो तय मारन मुकियां तिना ना मारे कुम, करड़ अपने जाइए पैर तिना दे चुप। क्राइस्ट को किसी ने पूछा जब सूली पर चढ़ा रहे थे कि क्राइस्ट व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दोज हु आर एग्जीक्यूटिंग यू, तो क्राइस्ट ने ये नहीं कहा कि मेरे बाद इनको भी सूली पर चढ़ा देना, इनको भी टांग देना। उसने कहा, ओ गॉड फॉरगिव देम दाउ दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। सब मजहबों का सबका एक ही संदेश आता है। और दूसरा जो आपने माइनॉरिटी की बात की है, यूथ का रोल। इस मुल्क में जिनको हम यूथ मानते हैं, छोटा मानते हैं, वर्कर मानते हैं, इतिहास में बहुत बड़े बड़े रोल अदा किए हैं। लाक्षागृह में जब पांडव थे तो विदुर ने एक खनिक भेजा था जिसने रात को खुदाई करनी थी सुरंग की, ताकि सुबह पांडव आग लगने पे वहां से निकल सके। तो जब वो खुदाई कर रहा था तो अर्जुन उसके पास आया। अर्जुन ने कहा, "ये क्या कर रहे हो?" तो उसने कहा, "मैं खुदाई कर रहा हूँ।" तो अर्जुन राजा था, उसको गुस्सा आया। उसने कहा, "ये क्या है, तुम्हें राजाओं महाराजाओं से, राजकुमारों से बात करने की तमीज़ नहीं है?"
तो वो खनिक रुक गया। उसने कहा अर्जुन तुम बहुत बड़े राजा होगे, बहुत बड़े महाराजा होगे, आज मेरे को इतिहास ने ये काम दिया है कि रातों रात मुझे ये सुरंग खोदनी है। अगर मैं ये सुरंग ना खोद पाया तो इतिहास कभी मेरे को माफ नहीं करेगा। इसलिए तुम राजकुमार अपने घर में रहो, राजा अपने घर में रहो, मेरे को मेरा काम करने दो। और इतना कह के उसने अर्जुन को वहां से दुत्कार दिया और खुद वो काम करने में लग गया। एक छोटा खनिक राजा को ये बात कह सकता है, एक छोटा खनिक संजय धृतराष्ट्र के साथ, जिसको उन्होंने भगवान कृष्ण ने लाइव टेलीकास्ट का दिया हुआ था, वो आंखें वो देख के बता सकते थे।